Hi, this is Polyban Teachers and I am Sagurika Banerjee. Once again, I am back with another exciting video of English Core. Today I am going to teach you poem number 1, My Mother at 66, written by a famous poet, Kamla Das. This is one of the poems taken from the book Flamingo of class 12th CBSE curriculum. So let's not waste our time and begin with the today's video. But before I continue with the video, I would request you to just subscribe my channel and click on the like and share button and watch the video till the end. So, poem 1, My Mother at 66, written by Kamla Das. So, in this video, I am going to tell you about the poet. I will give you the information about the poet, the theme of the poem, central idea. I will explain you the whole poem, and then the value points I will discuss with you, and then the poetic devices used in this particular poem, and finally the expected questions. So let's continue with the video and watch this video till the end. So if I talk about the poet Kamla Das, who was this lady Kamla Das? So Kamla Das, also known as Kamla Suraiya, was born on 31st March 1934 in Malabar, Kerala. She was an Indian English poet and at the same time a leading Malayalam author. तो कमला दास, जिनका जन्म 31 मार्च 1934 में हुआ था मालाबार में, केरला में, और वो एक इंडियन इंग्लिश पोएट थी और एट द सेम टाइम वो एक लीडिंग पॉपुलर मलयालम राइटर भी थी, ऑथर भी थी. Her popularity in Kerala is based chiefly on her short stories. ज़्यादातर उनकी पॉपुलरिटी जो है उनकी लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज पर बेस्ड होती थी. एंड ऑटोबायोग्राफी रिटन अंडर द नेम माधव कुट्टी, और उन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जो कि पेन नेम उनका था माधवी कुट्टी. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust जो उन्होंने 1977 में लिखा था, and then a collection of short stories Padmavati, The Harlot and Other Stories जो उन्होंने 1992 में लिखा था, and in addition to 5 books of poetry. She was a sensitive writer who captured the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. वो एक ऐसी सेंसिटिव राइटर थी जो कि रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्सिटीज को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती थी, और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माई मदर एट 66. Kamla Das had received many awards for her literary contribution, including few of them are, she was also nominated and shortlisted for Nobel Prize for Literature in 1984. 1984 में उनका नॉमिनेट किया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था उनका नाम नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए. शी रिसीव्ड एन अवार्ड ऑफ एशियन पेन एंथोलॉजी इन 1964. 1964 में उन्हें अवार्ड ऑफ एशियन पेन एंथोलॉजी मिला था, एंड देन केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था जो कि 1969 में मिला था, and Sahitya Academy Award in 1985. She died at the age of 75 in Pune on 31st May 2009. 31st May 2009 में उनकी डेथ हो गई, तब उनकी एज थी 75. Now if I talk about the theme of the poem, so what does the poem reveal? If I discuss about the theme, let's see what is there. The theme of the poem is aging. Actual theme है aging, बढ़ती उम्र, which is the law of nature. हर चीज, हर कोई चीज जो जीवित है उसका with the passage of time उम्र बढ़ेगी. It is one of the aspects of the law of nature. It also depicts the helplessness and aspirations of the young generation. और जब हमारे परिवार में कोई एजेड पर्सन धीरे धीरे अपनी एक एक सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तो घर में रहते हुए दूसरे जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनका कितना कंसर्न बढ़ जाता है अपने उन एजेड पेरेंट्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल,
सपोज मेरी माँ, वो दिन ब दिन उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट हर एजिंग, कि एक दिन ऐसा भी तो आएगा कि जब वो एक्सट्रीम बूढ़ी हो जाएंगी, या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो मुझे छोड़ के चली जाएंगी. सो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, और उसी को बड़े ही अच्छे ढंग से इस पोएम में प्रस्तुत किया गया है. इट पोर्ट्रेज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ and how everybody grows old and faces various situations that life throws at them. इस पोएम में अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ भी बताई गई है, यंग जनरेशन की क्या फीलिंग्स है वो भी बताई गई है, एंड एट द सेम टाइम हर कोई चीज जो विच इज बॉर्न, जो पैदा होता है, जीवित रहता है, उसका एक ना एक दिन अंत होता है. इस फैक्ट को भी बड़े अच्छे ढंग से दर्शाया गया है. Hence, this is the central theme of the poem My Mother at 66. The dead and blurred face of her mother tormented her heart. तो पोएम में बड़े अच्छे ढंग से पोएट ने ये बताया है कि उसकी माँ का जो चेहरा है वो धीरे धीरे रिंकल्स आ रही हैं, और वो जैसे एजेड होती जा रही हैं, वो किस तरीके से उस पोएट को चिंता में ला रही है, क्योंकि उसे डर है कि एक ना एक दिन उसकी माँ उसे छोड़ के चली जाएंगी. द ओल्डर वोमेन अपियर टू बी लॉस्ट इन हर कंसिडरेशंस, ये भी बताया गया है जो ओल्डर पेरेंट है, ओल्डर वोमेन है, वो किस तरह से अपनी ही दुनिया में खोई है, क्योंकि उन्हें ज्यादा एनर्जी नहीं है. शी डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स ऑफ सर्वाइविंग बिकॉज शी इज क्वाइट ओल्ड. Okay, the poet dismissed her attention from her mother and looked outside, and how the poet tries to change her mindset, tries to look outside the window and tries to change her thoughts, means tries to stop those thoughts, negative thoughts, and when she sees outside, जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे बाहर की दुनिया कितनी लाइवली लगती है. The world outside was loaded with life and action. The youthful trees appeared to be running quickly, and the youngsters watched gladly while moving out of their homes. वो देखती है, पोएट देखती है कि बाहर बच्चे खेल रहे, उछल कूद कर रहे हैं, ट्रीज भी पूरा अपने लाइफ में है, एंड व्हेन द कार इज मूविंग अहेड, ऐसा लग रहा है ट्रीज पीछे की तरफ जंप करती हुई जा रही है. तो इस तरीके का एक फुल ऑफ लाइफ बाहर का दृश्य है. बट जब वो कार के अंदर देखती है तो शी फील्स टोटली नेगेटिव एंड डिसहार्टेंड टू सी हर एजिंग मदर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, दिस पोएम शोज पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग मदर. तो उसका जो एक डर था, बचपन से एक डर था, हम सबको होता है कि हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल जुदा नहीं होना चाहते हैं. तो वी ऑलवेज लव आवर पेरेंट्स, and we always have this fear of losing them also. So the same thing the poet also had. She had the fear of losing her mother. Her mother was in the last phase of her life. उसकी मदर अपनी लाइफ का लास्ट फेज ऑफ लाइफ में थी, यानी कि वो लास्ट स्टेज जिसके बाद डेथ इज सर्टेन, बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड. सो द पोएटिस फेल्ट दैट शी वुड पास अवे सून. तो पोएटिस को ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ बहुत जल्द ही लास्ट स्टेज में, यानी कि शी विल अटेन हर डेथ, मर जाएंगी. पोएटिस गॉट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट. और होता है ना, जब हम अपने किसी भी प्रियजन के बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, तो साथ में वो डर का थॉट भी आता है बार बार, और वो आपको हमेशा अंदर से बहुत स्केयर्ड फील कर देता है. और तब आप सोचते हो कि वो थॉट आपके दिमाग से हट जाए, सो दैट कुछ पल के लिए आप उस डर से बाहर आ जाओ. द सेम थिंग हैपेंड विद द पोएट ऑल्सो. सो टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट शी लुक्ड आउटसाइड द कार. और वो इस नेगेटिव थॉट से बाहर आने के लिए वो कार के बाहर देखती है पोएट. एंड व्हाट डिड शी सी? The world outside was full of life and activity. बाहर की दुनिया full of life and activity है. The young trees seemed running fast. उसे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही थी और ट्रीज पीछे की तरफ जा रही थी, और बहुत ही full of life. They were running fast.
देन चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, बाहर बच्चे इतने खुश थे, इतने उछल कूद कर रहे थे, दे वर एनग्रॉस्ड इन देयर ओन वर्ल्ड, वेरी हैप्पी. At the airport they had to undergo a security check. The poetess had to undergo a security check at the airport. जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो सिक्योरिटी चेक में जाना पड़ता है. तो इस पार आकर द पोएटेस वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से थोड़ी सी दूर पे खड़ी थी. शी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, और वो अपनी माँ की तरफ दोबारा मुड़ के देखती है. शी फेल्ट पेन्ड टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर. अपनी माँ का वो कलरलेस पेल डल सा चेहरा देखकर उसे अंदर तक पता नहीं क्यों अजीब सी एक डर आ जाता है. बट हाइडिंग हर टीयर्स द पोएटेस सेड, सी यू सून अम्मा. लेकिन अपने टीयर्स को, अपने आंसू को छुपाकर, अपने डर को छुपाकर, चेहरे पे एक स्माइलिंग सा फेस लेकर वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है, सी यू सून अम्मा. और यहीं पर पोएम खत्म हो जाती है. दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. नाउ if you can see in the presentation My Mother at 66, you can see two ladies, one younger one is the poet and the older one is her mother. So they were driving and the poet was going from her parents house and she was going back to Cochin last Friday. This is given. So driving from my parents home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. अब पोएम के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, द पोएट इज सेइंग, अपने पेरेंट्स के घर से जब मैं ड्राइव थ्रू रोड मीन्स बाई रोड, व्हेन आई वॉज गोइंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, जब मैं कोचिन की तरफ जा रही थी, तो एयरपोर्ट जब जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को मेरे पास पाया. डोज ओपन माउथ हर फेस, और कैसा पाया, किस कंडीशन में पाया, शी वॉज डोजिंग. डोजिंग मतलब एक आराम से गहरी नींद में थी, वो कार में बैठी हुई थी. एंड ओपन माउथ, जैसे हो जाता है गहरी नींद में हमारा मुंह खुल जाता है, तो उनका माउथ खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उनका फेस जो है ना बिल्कुल एक कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी की तरह लग रहा था. क्यों लग रहा था, एक्सप्रेशनलेस, बिकॉज शी वॉज फास्ट इन स्लीप. तो पोएट उनका चेहरा देखकर एकदम से डर जाती हैं. एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और एक अजीब सी दर्द भरी फीलिंग आती है उनके अंदर, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे. और एकदम से अंदर तक उनके ये डर आ जाता है कि वो जितनी ओल्ड है उतनी ओल्ड दिख रही है. एंड इट वॉज क्वाइट अ फियरफुल थिंग फॉर द पोएट, क्योंकि पोएट को पता है एक सर्टेन ओल्ड एज के बाद एवरी पर्सन हैज टू डाई. तो ये जो डेथ का जो डर था, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, ये उनके दिमाग में घर कर गया था. तो बहुत डर गई थी. तो उन्होंने क्या किया, पुट दैट थॉट अवे, वो चाहने लगी कि उनका ये जो थॉट है ना, ये जो दिमाग में आइडिया आया है, ये हट जाए. और ये कैसे हटे, शी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग. उन्होंने अपने इस नेगेटिव थॉट से बाहर आने के लिए पोएट ने क्या किया, गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा. और जब बाहर देखा तो गाड़ी तो आगे की तरफ जा रही है, उसे ऐसा लगा कि ट्रीज सारे पीछे की तरफ भाग रहे हैं, फुल ऑफ लाइफ. एंड द चिल्ड्रन आर ऑल्सो मेरीली हैप्पीली दे आर प्लेइंग आउट ऑफ देयर होम, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, घर से बाहर. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंची पोएट और सिक्योरिटी चेक हुआ, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी माँ से थोड़ी दूर पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, पोएट कह रही है मैंने दोबारा अपनी माँ को देखा. वैन पेल, उनका चेहरा अभी भी वैन था, कलरलेस, पेल, डल, बिल्कुल कैसे, एज अ लेट विंटर्स मून,
उनका चेहरा बिल्कुल एक लेट विंटर्स मून, मतलब विंटर के सीजन में जब आकाश क्लियर नहीं होता, धुंध छाई रहती है और उसमें जब आप मून देखते हो तो इट बिकम्स वेरी, इट लूजेज इट्स शाइनिंग, वेरी डल। वैसे ही पोएट को अपनी माँ का चेहरा लग रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक मतलब एक पेन, एक दर्द। और पोएट कह रही है कि उसको दोबारा से वो फीलिंग, जैसे उसने माँ की तरफ देखा और उसने अननोइंगली कंपेयर किया विद दैट ऑफ विंटर्स मून, उसका दिल फिर से वही डर से भर गया। दैट ओल्ड फैमिलियर जो उसे बचपन से डरा रहा था, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, माई चाइल्डहुड फियर। एंड वो डर क्या था, फैमिलियर का क्या था, हर चाइल्डहुड fear of losing her mother. So this is all about the poem. But all I said was, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। पोएट ने बड़ी ही सावधानी से, क्योंकि she did not want to convey the same negative feeling to her mother, अपनी माँ को बिल्कुल ये एहसास नहीं होने देना चाह रही थी कि वो खुद डरी हुई है। So what she said, all I said was see you soon, कि मैं आपसे फिर दोबारा मिलूंगी, यही कह पाई पोएट। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने चेहरे पर स्माइल रखा था, स्माइलिंग जेस्चर दिया था, और देते हुए बड़े ही पॉजिटिव वे में उन्होंने ये कहा कि सी यू सून। बट इनवर्डली, अपने दिल में वो ये बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि सी यू सून पता नहीं होगा कि नहीं। Now if we talk about the value points of this poem. So the first one is, poetess is traveling to Cochin airport with her mother in a car. So she was going to Cochin, and for that she was going to the airport with her mother in the car. She looks at the wan pale face of her dozing mother. In the car, inside the car, the mother was dozing. She slept, and when she was dozing, the poet saw her mother's face, which she felt was totally colorless, pale and dull. Old fear of losing her mother returns, and with that the fear of losing her mother, which was an old fear, that again came back to her mind. When she wanted to come out from that negative thought, so she saw outside the car. Sprinting trees and merry children provide the contrast and relief. And बाहर जब देखा तो the contrasting things she saw very positive, and those were sprinting trees and the merry children playing outside their homes, and that gave her a sort of positive thought in her mind. After the security check, the old familiar ache returns. लेकिन again at the airport, when she had done the security check and she looked back to her mother, that same fear again came back to her mind. She tries to hide her emotions by smiling, but she did not reveal it to her mother. She tried to hide her emotions and feelings by just putting a smile on her face. She bids goodbye to her mother with the hope to see her again. And with this, she bids goodbye to her mother with the hope to see her again, although inwardly she had that doubt whether she would be able to meet her mother or not. Now poetic devices. मैंने आपसे कहा था poetic devices हम डिस्कस करेंगे। तो poetic devices में क्या है, सबसे पहले assonance. Assonance क्या है? That is the use of vowel sound again and again in a line. तो यहाँ पर वॉवल साउंड आपका ओ, ए और ई आया है, जैसे डोज, ओपन माउथ, हर फेस, एशन, फेस ए, एशन, ए, ई, ये साउंड आया है, साउंड ऑफ ए, ओ एंड ई, विच आर वॉवल्स. Simile is used, another poetic device that is used like it is given, the color of the mother's face has been compared to that of a corpse. And ashen means like, use of like, her face ashen like that of a corpse.
ये लाइन दी गई है, इसमें लाइक यूज किया गया है, दैट रिवील्स दैट इट इज अ सिमिली. Consonance is another poetic device used here. Use of sound S and T. Consonant letters. तो उनके साउंड जब यूज होते हैं तो उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है. जब वॉवल के होते हैं यूज, उन्हें एसोनेंट्स कहा जाता है. तो कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं? ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज टी, एस, स्प्रिंटिंग एस अगेन. Imagery. Imagery is another poetic device which has been used. When the poet says trees sprinting, merry children spilling, ये कहीं ना कहीं हम सबको, रीडर्स को एक इमेजिनेशन, एक पिक्चर रिवील करती है कि हाँ बाहर ट्रीज थे और बच्चे खेल रहे थे. सो दिस इज इमेजरी. नेक्स्ट इज रिपीटिशन. रिपीटेड यूज ऑफ स्माइल. स्माइल, स्माइल, स्माइल. So repetition is used. And repetition of the word looked is also used in the poem. Then comes the rhyme scheme. The poem does not follow any particular rhyme scheme, any rhythm. It is written in free verse. तो free verse में लिखा गया है, कोई definite rhyming scheme नहीं है. Finally simile, जैसे मैंने आपको कहा था, एक इसमें हर फेस एशन, एक दोबारा एक और सिमिली यूज की गई है जिसमें लेट विंटर्स मून, ठीक है, उसके साथ इसको कंपेयर किया गया है. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. द वन इज द पोएट हैड अ चाइल्डहुड फियर. व्हाट वाज इट दैट नाउ ट्रबल्ड द पोएट. पोएट की एक चाइल्डहुड फियर थी, और वो क्या फियर थी, वो क्या चीज थी जो अभी भी पोएट को परेशान कर रही थी. तो इसमें आंसर होगा कि yes, she had a childhood fear. Her fear of losing her mother was the actual thing that troubled her, and she was afraid that mother would slowly grow old and eventually die. On seeing the visible signs of aging on her mother's face, the poet felt this fear again. और अपने माँ के चेहरे पे दोबारा जब वैसा ही एक्सप्रेशन वो देखती है तो उसे फील होता है कि वो जो डर था उसके अंदर ऑफ लूजिंग हर मदर, वो डर दोबारा से आ जाता है. एंड शी थॉट दैट शी माइट नॉट सी हर अगेन. उसे ऐसा लगता है कि वो शायद अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाएगी. अनदर क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट एनीथिंग? व्हाट वाज इट? क्या आपको लगता है कि पोएट के जो पार्टिंग वर्ड्स क्या थे? सी यू सून अम्मा. ये कुछ बताती है, जताती है इस पोएम में. और क्या जताती है? यस, दे सजेस्ट समथिंग. द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस, वो अपने माँ को एश्योरेंस दे रही थी, दिलासा दे रही थी. एंड हर स्माइल, और साथ में उनका जो चेहरे पर स्माइल था, प्रोवाइड अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द ओल्ड फेमिलियर फियर ऑफ चाइल्डहुड. पहले जो उसका पोएम की शुरुआत में जो एक फियर ऑफ चाइल्डहुड फियर था पोएट के अंदर कि वो अपनी माँ को लूज करेगी, उसका एकदम विपरीत, एकदम कॉन्ट्रास्ट इमोशन था एट द एंड ऑफ द पोएम. ये चीज जताती है. दूसरा, हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हाइड हर रियल फीलिंग्स. उसके जो वर्ड्स थे, सी यू सून अम्मा, और उसका जो चेहरे पे स्माइल था, ये कहीं ना कहीं उसके अपने इमोशंस को हाइड करने, छुपाने का एक तरीका था. ये भी बताती है. एंड शी ट्राइज टू हाइड हर फियर अबाउट हर मदर्स फ्रेल एंड डेटेरियरेटिंग हेल्थ विच माइट सेपरेट हर फ्रॉम हर मदर. और वो कोशिश कर रही थी इन वर्ड्स के जरिए, इन अपने चेहरे पर मुस्कान के जरिए, वो फीलिंग्स दूर भगाने की या सप्रेस करने की जो उसे बचपन से डराती आ रही थी और आज भी पोएम की शुरुआत में भी उसे डरा रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून? मदर को लेट विंटर मून के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? सो इसके आंसर्स में आप लिखेंगे, टू ब्रिंग आउट द सिमिलैरिटी ऑफ एजिंग एंड डिके. लेट विंटर मून शोज द पेलनेस, डलनेस, और एजिंग के साथ साथ जो चेहरे में डलनेस आ जाता है,
जो आपकी डीके, आप धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं, उसको दर्शाया गया है। द लेट विंटर मून लुक्स हेजी एंड ऑब्सक्योर। विंटर के मौसम में जैसे मैंने आपको कहा कि स्काई उतना क्लियर नहीं होता बिकॉज ऑफ फॉग, और यू कैन से धुंध, तो उसकी वजह से चांद भी क्लियरली नहीं दिखता। सिमिलरली हर मदर्स फेस ऑल्सो हैज लॉस्ट ऑल हर चार्म, ऑल हर शाइनिंग, lacks shine and strength, power, shine, charmness, everything she has lost. The poet's mother has an ashen face resembling a corpse. पोइट की मदर का फेस बिल्कुल एक डेड बॉडी की फेस की तरह लग रहा था, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, टोटली एक्सप्रेशन लेस. So that's all for today. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. And I think I was able to explain you the poem clearly. And if you have not understood clearly, please watch this again. मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है और आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर नहीं आई है तो दोबारा से इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझ लें, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर भी, उसके वैल्यू पॉइंट्स को भी ध्यान से समझें. So that's all for today. If you like this video, please like, share and subscribe my channel and my video, and please click on the bell icon so that whichever video I make next time, you get the notification of that. So till I bring more videos, bye bye.